اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفرنامہ ہے نا. معراج کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی. تو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے. آپ تمام میں سے کون کون معراج کے بارے میں جانتے ہیں؟ کون چلے یاد کرنا. یہ میں سب سے پہلے آپ کو معراج کا مقصد بتا دوں گی. آپ جو اچھا ہمیں بتا میرا کیا سمجھ آسمان کی سیر کرائی گئی. اچھا اس سے کیا خیر. تو اللہ تعالیٰ یہ سچویشن پہلے آپ سمجھ لیں کہ میرا جب بھی وہ نبوت کے 12ویں سال میں ہوئی. یہ بات تو ہے 13ویں سال ہجرت تھی. نہیں اب ہم نہ معلوم ہے کہ 13ویں سال ہجرت تھی. 12ویں سال والوں کو تو نہیں معلوم نا 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو 12ویں سال معراج ہوئی. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ 1 سال کے بعد میرے نبی کو میں مدینے کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے, مدینے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی, اس کا سردار میرا نبی ہوگا اور اسے ایک اسلامی ریاست میں بناؤں گا. تو اسلامی ریاست کے رولز اینڈ ریگولیشن لاگو کرنے کے لیے, رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رولز اینڈ ریگولیشن دینے کے لیے بلایا. معراج کا مین مقصد کیا ہے بتاؤ؟ 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ جانا تھا. وہاں ایک اسلامی حکومت ہونی تھی. اس اسلامی حکومت کے رولر کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامک حکومت کے رولز اینڈ ریگولیشن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا. اوکے, تو کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشن دیے, کس طرح اسلامی حکومت میں کیا کیا دیے, یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اوکے, اب میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی. اب یہاں کے پرائم منسٹر صاحب, صرف مثال دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے, ریلیٹ نہیں کرنا ہے. اوکے, اب انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب کرناٹکا کے چیف منسٹر صاحب کو بلاتے ہیں اپنے پاس. کس لیے؟ کرناٹکا کے اندر رولس چینج کرنے کے لیے یا رولس اینڈ ریگولیشن دینے کے لیے. اوکے, تو یہاں کے چیف منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جو رولس اینڈ ریگولیشن انہیں دیے جاتے ہیں یہ بتانے والا کون؟ پرائم منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب. اسے اتنا معلوم ہے تو کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا. چیف منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں تو کیا بتا سکتے ہیں؟ یہاں سے میں کرناٹکا سے دہلی کو گیا تو راستے میں کیا کیا ہوا, کس کس سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کون کون سے منسٹرز ملے اور ان کے ساتھ کس طرح کا بہیو ہوا, تو پھر وہاں گئے تو ان کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا. یہ تمام باتیں کون بتائیں گے؟ چیف منسٹر صاحب. اوکے, اب یہاں پرائم منسٹر صاحب جو میں نے بتایا اللہ رب العالمین کو اگر آپ لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سمجھے, ہم اس کرناٹکا کے صرف سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں. اوکے, تو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن جو لاگو کیے اللہ نے, وہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہمارے نبی تو نہیں بتائیں گے. نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے وہ کیا بتائیں گے؟ یہاں سے آسمانوں تک جانے کے لیے زمین میں کون سا سفر ہوا, کون کون سے اسٹیشنز ملے, وہاں کس کس سے ملاقات ہوئی, پھر آسمان پر گئے تو آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہوا, آپ کو کس طرح ویلکم کیا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس سے انٹروڈکشن کرایا گیا, انٹروڈیوس کرایا گیا, پھر آپ کو کیا کیا دکھایا گیا, پھر آپ کو تحفتاً کیا دیا گیا. یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی. تو پیاری بچیوں, آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں معلوم ہوتے ہیں وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر یہ دعاؤں کے بیچ میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کیا
रूल्स एंड रेगुलेशंस देने के लिए बुलाया था वो हम इंशाल्लाह समझेंगे कुरान के जरिए से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफरनामा हुआ ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं तो ये हदीस से पता चलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो ये वाकया जो है हिजरत से 1 साल पहले आम रिवायतों में आता है कि रजब के 27 तारीख की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी है। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला इसका जिक्र सिर्फ इतना सा करते हैं सूरह बनी इसराइल की स्टॉक में, मैंने अपने बंदे को मस्जिद हरम से दूर की मस्जिद की तरफ ले गया, मस्जिद अक्सा तक, बस इतना सा जिक्र करते हैं। उसके बाद जो रूल्स रेगुलेशन देने थे वो जिक्र करते हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद में। अब ये मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक गए तो हिस्सा तफसीलन कौन बता रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस वाक़ये की तफसीलात 28 रावियों के जरिए से हम तक पहुंची है। 28 यानी 28 सहाबा इकराम के जरिए से हम तक पहुंचे हैं। 7 रिवायत करने वाले सहाबा इकराम वो भी जो खुद उस मेराज के जमाने में मौजूद थे, प्रेजेंट थे। ओके, और 21 वो जिन्होंने बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान मुबारक से इस वाक़ये की तफसील सुनी। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी का मनसब ड्यूटी मिले कितने साल में थे? जो जोर से बोलो 12 साल। चल 12 साल में थे। आपकी उम्र कितनी थी? जल्दी जल्दी जोर से बोलना। 52। 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए थे। 12 आप समझ उनकी उम्र 50 पर 2 साल की थी। हर में काबा में सो रहे थे, काबा के सहन में सो रहे थे। एकाएक जिब्राइल ने आकर आपको जगाया। अचानक जगाया जाता है तो नींद जरा वनूदगी इस तरह का होता है ना, जगाते एकदम फ्रेश होकर को जाती है ना। तो ऐसी हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए, सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसको धोया, फिर उसके अंदर ये सफर के वास्ते क्या क्या जरूरत है वो चीजें जिब्राइल ने डाल दी। क्या क्या? हिल्म, सबर, बुर्दबारी, अक्लमंदी, दानाई, ईमान, यकीन, ये वो रूहानी स्टेमिना, रूहानी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो जो बहरहाल यानी अंदर की रूहानी ताकत के लिए जो जो जरूरी है वो तमाम चीजें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करके जमजम से धो के उसके अंदर रख दी। उसके बाद आपकी सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफेद और खच्चर से कुछ छोटा था। खच्चर कहते हैं एक छेना बकरा जो होता है ना, गधे से छोटा छेना, इस तरह एक छोटा जानवर। ओके, तो बर्फ की रफ्तार से चलता था, उसमें इतना फास्ट चलता था कि उस बर्फ कहते हैं बिजली को, करंट को। करंट की रफ्तार कितनी है आप आपको बताने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितनी मील जाता है, तो उससे ज्यादा स्पीड से दौड़ता था, इसीलिए उसका नाम बुराक रखा गया। बर्फ अरबी ज़बान में करंट को कहते हैं, इसी से इसका नाम बुराक पड़ा। ओके, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सवार होने लगे, उसे लगा सामने रखे ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे तो कितना नेचुरल दिखा रहे। देखो, एक नए जानवर पर नई सवारी सवार होने जाती है तो आराम से बिठा देता है, तो उन्हें नखरे करने लगा। तो जिब्राइल ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है, आज तक मोहम्मद से बड़ी पर्सनालिटी का कोई इंसान तेरे ऊपर चढ़ बने है। तो फिर आप उस पर सवार हुए। जब जिब्राइल थपकी दिए तो उन्हें इत्मीनान से खड़ा आप सवार हुए और जिब्राइल आपको साथ लेकर चले। पहली मंजिल मदीने की थी, हरम से निकले थे। सबसे फर्स्ट स्टेशन कौन सा? मदीना। उस वक्त उसका नाम क्या था? यसरब। अभी हिजरत कर को जाने के बाद उसका नाम मदीना पड़ा, तब तक उसका नाम यसरब था। वहां उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्राइल ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। भविष्य नहीं बताती ना, ऐसा 1 साल के बाद का किस्सा जिब्राइल ने बताया। ओके, उसके बाद वहां से निकले। दूसरा स्टेशन था तूरे सीना, यानी तूर कहते हैं पहाड़ को, सीना का वो पहाड़ जहां मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बातचीत की थी। दूसरा स्टेशन। फिर तीसरा स्टेशन, तीसरी मंजिल थी बैतुल लहम। बैत कहते हैं घर को, लहम यानी वो जगह जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
चौथा स्टेशन तीसरा। अब वहां से निकले तो चौथा स्टेशन बैतुल मुक़द्दस था। एक बात को और से सुनना है प्यारी बच्चियों, ये रात के शुरू में सफर शुरू नहीं हुआ। आधी रात का वक्त था, आपको नींद लग चुकी थी, जिब्राइल आकर उठाते ही तो नींद की जरा इसमें होशियार में जाते ही सीना चाक करते ही एकदम बाद में फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद सवारी का सफर आधी रात से शुरू हुआ था सफर ये, ठीक है। उसके बाद पहली मंजिल कौन सी, पहला स्टेशन कौन सा, मदीना यसरब। दूसरा तूरे सीना जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात हुई। तीसरा ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए। चौथा स्टेशन था बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस। यहाँ बुराक का सफर खत्म हुआ, ये जानवर का जो सफर है वो खत्म हुआ। इस सफर के दौरान एक जगह, एक चारों स्टेशन के दौरान एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ इधर आओ। आपने तवज्जो नहीं की, जिब्राइल ने बताया ये यहूदियत की तरफ बुला रहा था। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई इधर आओ, आपने उसकी तरफ ही तवज्जो नहीं की। जिब्राइल ने कहा ये ईसाइयत का दाई था, हर कोई अपने अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है। फिर एक औरत निहायत बनी सवरी बड़ी खूबसूरत सी औरत नजर आई और उसने अपनी तरफ बुलाया। आपने उससे भी अपनी नजरें फेर ली। जिब्राइल ने कहा ये दुनिया थी, दुनिया बड़ी खूबसूरत होती जा रही है ना रोज रोज। फिर एक बहुत ही बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा दुनिया की उम्र का अंदाजा इस औरत से लगा लीजिए। जब एक बुढ़ी औरत को देखती है तो सडन आपको फ्लैश क्या होता है, इन्हें 50-60 जीती होता है क्या, अफ्तारी की तब्जारी का होता है। तो उम्र, दुनिया की उम्र का अंदाजा इस बूढ़ी औरत से लगा लीजिए, कितना अच्छा रिलेट कर पाएंगे। फिर एक और शख्स मिला जो अपनी तरफ उसे आप को मुतवज्जा करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राइल ने कहा ये शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। ये 4 स्टेशन के दौरान ये इन तमाम से मुलाकात हुई। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर आप बुराक से उतर गए और उसे एक जगह मुकाम पर बांध दिया जहाँ ये बुराक से पहले अंबिया भी सफर किया करते थे। तो पहले अंबिया कहाँ बांधा करते थे, वही पूरा बताने वाले कौन, गाइड जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ओके। उसके बाद हैकले सुलेमानी में दाखिल हुए। हैकले सुलेमानी कहते हैं ये बैतुल मुक़द्दस जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर किया हुआ है, ठीक है। वो मस्जिद जो थी उसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। उसके अंदर दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो शुरू से अब तक के थे। हमारे नबी आखिरी पैगंबर, तो मतलब क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर अल्लाह ने दुनिया में भेजे थे वो तमाम पैगंबर वहाँ मौजूद थे। कितने, ये 25 से 26 का जो कुरान में जिक्र मिलता है बस उतने से पैगंबर नहीं है, सही इल्म अल्लाह ही को है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंदाज़न 1,24,000 ईसा कुछ, ठीक है। बहरहाल तमाम पैगंबर वहाँ मौजूद थे और सब मुंतजर थे, सफे बांध चुके थे, नमाज को तैयार खड़े थे, सब मुंतजर थे, इंतजार कर रहे थे कि कौन आकर सामने इमामत करता है, ठीक है। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका हाथ आप पकड़कर आगे बढ़ा दिया और सामने खड़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पैगंबरों को नमाज पढ़ाई। उसी से हमारे नबी का नाम पड़ गया इमामुल अंबिया। अंबिया कहते हैं नबियों की जमा, तमाम नबियों के इमाम बन गए हमारे नबी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने अब ट्रीट होना ना, मेहमान हुकुन आ गई। आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी था, दूसरे में दूध था, तीसरे में शराब थी। 4 चीजें बस, 3 भी पीना नहीं, एक, तीनों सामने लगा कर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का गिलास उठा लिया तो जिब्राइल खुश होकर आपको थपकी दी और मुबारकबाद दी कि आप फितरत की राह पा गए, यानी जो नेचुरल जो आपको पीना था वही आपने उठा लिया। जरा गौर करके देखें, पानी से प्यास बुझती है, फिर शराब से लुत्फ आ सकता है, लज्जत मिल सकती है। दूध ऐसी चीज है जिससे प्यास भी बुझती है, भूख भी मिलती है, ताकत भी आती है और प्योरिटी भी दिखते है दूध में, नहीं बहरहाल। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्राइल उसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले चले। अरबी जबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं। इसी मुनासिबत से ये सारा वाकया मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। वहाँ के जो गॉड फरिश्ते रहते हैं उन्होंने पूछा कौन आया है। जिब्राइल ने बताया, अपना नाम बताया, पूछा आपके साथ कौन है। जिब्राइल ने कहा मोहम्मद।
پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تب دروازہ کھلا. کتنے ریسٹرکشن ہی رکھو. اب آپ غور کر کے دیکھیے, وہ فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل. ایک سردار آ کر کہتا ہے تو ماتا اتنا جلدی کھلتے نہیں, وہ ہمارے سردار آگے کر دو. یہ سردار کا بڑا سردار اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں آتا, یہ چھوٹے سردار چھوٹے فرشتے بھی نہیں مانتے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے سردار, رحمت اللہ علیہ سرور دو عالم. لیکن پوچھ کر کھولا گیا اور آپ کا بہت زور کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا. یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کہتے ہیں سوز, زور کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا. یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کہتے ہیں سوز, انسان کے روحوں کو, کہ ان بڑی بڑی پرسنالٹیز سے ہوا جو اس پہلے آسمان پر مقیم تھی. پہلے آسمان پر کون کون تھے ان کے ساتھ انٹروڈکشن کیا گیا, فرشتوں کے بھی انسانوں کا بھی. تو ان میں ایک نمایاں ایک نظر آنے والی شخصیت اب تمام رہتی ہے اس میں, یہ ایک دم پرسنالٹی دیکھتے ہی اٹریکٹ کر دینا. تو اس طرح ایک شخصیت تھی, ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی, یعنی کمپلیٹ پرسنالٹی جسے بولتے ہیں, مکمل انسان کہتے ہیں, کمپلیٹ انسان کو. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گی, خوبصورت سے خوبصورت, میں لڑکیوں کی مثال دوں گی, تمام لڑکیاں ایک دم بہت حسین لڑکی سامنے کتنی اچھی ہے, نہیں اس کی ذرا ناک ایسے ہونا تھا, ذرا رنگ گورا ہونا تھا, ذرا ہائٹ ہونا تھا, اتنی دبلی, کچھ نہ کچھ آخری میں ہم رکھ لیں پوائنٹ نہیں. یہ ہر رقم سے اچھی ہے نا, تب سے بولی بہت اچھی ہے, چوٹی لمبی رہتی, کتنا اچھا دکھتا تھا نہیں لاسٹ میں آخری میں کچھ نہ کچھ تو رکھتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو پرسنالٹی تھی یہ مکمل پرسنالٹی تھی, کوئی عیب, کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی کچھ بتانے کے لیے نہیں تھا. چہرے مہرے اور جسم کی ساخت کہیں سے بھی کوئی نقص نہیں تھا. جبرائیل نے بتایا یہ آدم علیہ السلام ہے. کیوں؟ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا نا. اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں کہیں نقص کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ بیٹھے تھے. دائیں جانب یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھتے تو خوش ہوتے, لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھتے تو روتے. حضور صاحب نے پوچھے کیا مسئلہ ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آدم کی جنریشن ہے. آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں. پھر آپ کو ایک تفصیلی مشاہدہ کرایا گیا. تفصیلی مشاہدہ کر کہتے ہیں ڈیٹیل ایک ایگزیبیشن کی طرح آپ کو دکھایا گیا. ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. تو اب یہاں ہمیں آرام سے سننے کا بھی اتنا مزہ نہیں مل رہا ہے, لیکن جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, زراعت کرتے ہیں, ان کو سب سے عید سے بھی بڑھ کر خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن کھیتی کاٹی جاتی ہے. جو انویسٹ کر ہوتی جو محنت کر ہوتی پورا نکلنے کا دن نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو ادھر کاٹ رہے تھے, ادھر بڑھ رہا تھا. تو پوچھنے پر جبرائیل نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے لوگوں کو اس طرح کا صلہ ملے گا, اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا. پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. پیارے بچوں, یہاں آسانی کے ساتھ سننے والا معاملہ نہیں ہے, فیل کرنا ہے. ایک انسان کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے, اور پتھر چھوٹا سا نہیں, بڑے پتھر سے سر کچلا جا رہا تھا. جب سلا کر سر کے اوپر پتھر کی سیل ڈال دی جائے تو کیا حالت ہوگی سر کی؟ کیا ہوگی؟ پورا چہرہ چمن ہو جائے گا, اندر سے بھیجا نکلے گا اور انسان ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں موت تو ہے نہیں, تو پتھر سے سر کچلا جاتا, پتھر دور جا کر پڑتا, وہ فرشتہ جا کر وہاں سے پتھر اٹھا لے کر آئے تک, پھر چہرہ صحیح سلامت, پھر پتھر سے سر کچلا جاتا. یہ چین یہ چل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سر گرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی. سر گرانی کہتے ہیں بوجھ, وزن, سر وزن ہو گیا, بس سر میں درد ہو رہا ہے, اٹھنے نہیں ہو رہا. فجر کی نماز کو سردی ٹھنڈی کہاں سے بھی درنا شروع ہو جاتی نہیں, یہ بھی ایک مطلب ہے سر گرانی کا. اور دوسرا بے پرواہی, نماز کے تعلق سے بے پرواہی, پڑھیں گے ٹائم ہوگا چھوڑا سر میں پڑھیں گے. لائٹ جو لیتے ہیں نا نماز کو, تو ایسے لوگوں کا سر اللہ تعالیٰ وہاں کچلا جائے گا. اوکے, اب اس سے دو باتیں بتا سکتی ہیں پہلے بچے. ایک بات تو یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو آپ بار بار کیوں پوچھتے یہ کہیں کو ہو رہا ہے, یہ کہیں کو ہو رہا ہے, پوچھتے نہیں پوچھتے. ایک
दूसरा, अल्लाह ताला की रहमत झलक रही है। देखिए अभी हम गए नहीं, अभी हमारा सब कुचला नहीं, अभी हम यहाँ हैं। अल्लाह ताला अभी से बता रहे हैं कि देखो तुम नमाज में गफलत बरतोगे ना तो तुम्हारा वहां अंजाम ये होने वाला है, लिहाजा अभी से सुस्त जाओ। इतना बताने के बावजूद अगर हम नमाज से गफलत बरतेंगे तो गलती किसकी होगी? तो ये अंजाम बताया गया। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। हम तुरंत ने पूछा कि कौन अहमक है? अहमक कहते हैं किसे कहते हैं? जिससे अक्ल नहीं होती, बेवकूफ होता है ना उसे। तो कहा गया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा नहीं सकता था। नेचुरली क्या होता है, क्या तो ये बोझ उठाने जाती उठा नहीं तो जरा कम कर दी कि और ज्यादा बढ़ा देते, कम करते, लेकिन ये बढ़ा रहा था। इसलिए अफसर ने पूछा तो बताया गया कि जिम्मेदारियों का, अमानतों का इतना बोझ है कि वो संभाला नहीं, मगर इसको कम करने की बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने पर, वो भी कर ले तुम्हें, वो भी कर ले तुम्हें, सब एक भी पूरा नहीं हो रहा। जो दुनिया में इस तरह अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए करते हैं उनका अंजाम बताया गया। फिर देखा इसमें से बहुत सारे ही वक्त की कमी है तो मैं चंद एक आपको बताती हुई बात को आगे रखूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो पूरी तफसील के साथ बताऊंगी तो सिर्फ आधा होगा और फिर और बहुत आधा लेना मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखा कुछ लोगों की जबानें और होंठ खैंचियों से कतरे जा रहे थे। मेरी बच्चियों, कभी कभार दांत से जबान कतरी जाती है, कभी कभार चाटते चाटते कितनी तकलीफ होती है। नहीं, यहाँ क्या है, कैंची से होंठों को और जबानों को कतरा जा रहा था। अब जबान और होंठ कतरे तो खून तो निकलेगा, इधर कतरते इधर खून होता, फिर इधर जम जाता, फिर कतरते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? कहा गया ये गैर जिम्मेदार तकरीर करने वाले। इस सीट पर बैठकर जो बताया जाता है, क्यों मिला हूँ, जबान दे डाले, जबान में हट नहीं है, बोलते गए और फिर अमल ना करे, ये लोगों के लिए भी आता है। और दूसरा, जो पॉलिटिशियंस कहते कुछ है, सीट मिलती है तो करते कुछ है, उनके लिए भी बात होती है, ठीक है। तो जो गैर जिम्मेदार है, जो बिला तकल्लुफ जबान चलाते हैं और फितने बर्पा करते हैं। एक और मुकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये दूसरों पर तान दराज बातें किया करते हैं, ताने तशने की बातें जो करते हैं, उन्होंने अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पहले भी चीज गौर करके देखें, हमारा गोश्त हम पक्का खाते हैं, छोटे बचपन में भी जब लगते हैं तो दूसरों के हाथों पर वाच बनाते हैं कतर के, नहीं रोज गुस्सा आया तो मुंह से नहीं होता रहने कदर हम लेती, उसकी तकलीफ का एहसास नहीं होता मर्द, लेकिन अपना गोश्त कौन बदलता है? लेकिन वहाँ अपना गोश्त अपने हाथों से, अपने दांतों से काट काट कर खा रहे थे। पूछने पर बताया गया कि ये वो लोग ही जो दुनिया में ताने मारा करते हैं। तान तशनी की बातें करने से सामने वाला का दिल छलनी होता है कि नहीं, तकलीफ होती है कि नहीं, वो तकलीफ वो खुद आखिरत में उठाएगा, अपना गोश्त खुद कतर कतर कर खाएगा। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे। तांबा किसे बोलते हैं? कॉपर। तो तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने को नाखूनों से नोच रहे थे। मुंह और नाखून जो है वो तांबे का रहा, ऐसा लोचे तो गोश्त नाखूनों के साथ आता कि नहीं। फिर सीना और मुंह हर एक का बहुत सेंसिटिव होता है। आप गौर करके देखें, पीठ को मारे तो मारा खाते, मुंह को मारे मुंह छपा देते नहीं। तो ये दो कर रहे थे। पूछा गया ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। तेरी बच्चियों, रुक कर सोचने का मकाम है। खास कर लड़कियों की और औरतों की आदत होती है कि पीठ के पीछे लोगों की बुराई बयान करते हैं, जिसे गीबत का नाम दिया गया है। हमारे अंदर गीबत इतनी आ चुकी है कि हम गीबत को गीबत समझते ही नहीं। गीबत की कराहत ही हमारे अंदर से निकल गई है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में गीबत के ताल्लुक से फरमाता है कि इतनी कराहत का, इतनी घिनौनी काम है जैसे कि तुम अपने मरे हुए भाई की लाश का गोश्त नोच नोच कर खाओ। खाता है कोई? मुर्दा पड़ा है अपना भाई, दुश्मन ही सही, भाई को सारी जिंदगी उसकी सूरत नहीं देखते, उसकी मैयत को नहीं आते, खत्म खा लिया हो। लेकिन अगर वो मैयत सामने पड़ी है और कोई कहे
जिंदगी भर तुमने मुंह नहीं देखा, अब जाओ उसका गोश्त कतर खाओ, खाएंगे? कोई खा सकता है? इतना घिन आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जितना तुम घिन खाते हो ना, ऐसा ही लोगों की पीठ के पीछे उनका गोश्त खाने के मुताबिक है, उनकी बुराई बयान करना। तो ये गीबत करने वालों का। और उनकी इज्जतों पर हमले किया करते थे। इज्जतों पर हमले का मतलब क्या है? वो उनकी बेटी है, नहीं मकान की खड़ी थी, क्या कि उनका है, देखा है हमने, कंफर्म किया हमने, लेकिन हम बातों को फैलाते रहते हैं। तो ये करने वालों का अंजाम वहाँ क्या है? नाखून टांग रखे होंगे और वो अपना मुंह और अपना सीना नोच रहे होंगे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊंटों के बराबर थे, इन्हें इतने लटक कर जमीन को आ गए थे होंठ। अब होंठ इतने बड़े बड़े अल्लाह ताला ने क्यों कर दिए? इसलिए कि इन होंठों से आग खाना था, अंगार को खाना था। तो पूछा ये कौन है? कहा गया कितना रिलेटेड अल्लाह ताला ने अजाब रखा है। देखिए, जो दुनिया में यतीमों का माल हजम कर जाता है उसे वहाँ आग के गोले खिलाए जाएंगे। समझ रहे हैं? टुकसा की माल मिला, गरीब का माल मिला, यतीम का माल मिला, हड़प कर दिया, आसानी के साथ खा जाता ना। अब अंगार खा मांगो, अल्लाह ताला आग खिलाएगा। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले लोग उनको रोनते हुए गुजर रहे हैं। इतने बड़े बड़े ही पेट, बहुत बड़ा पेट हो तो बैठ नहीं सकता, इंसान पड़ जाता है। अब वो पड़ को है तो लोग उसके ऊपर से रोंद नहीं गुजारी और अंदर सांपा कलबला रही। इतने बड़े पेट हैं और सांपों से भरे हुए हैं। पेट के अंदर सांपा तड़प रही से बिबिदारी से भी दिख रहा है। लोग वहाँ रोन लेकर उसके ऊपर से जा रही और उन्होंने अपनी जगह से हल नहीं सकते। पेट फुट रहा भी नहीं, सांपा बाहर आ रही भी नहीं, इन्हों हल सक रही भी नहीं अपने वजन की वजह से। पूछा ये कौन है? बताया गया ये सूद खाने वाले, ब्याज बड्डी खाने वाले लोग। दुनिया में ब्याज खाता है इंसान तो लोगों का खून चूसता है कि नहीं चूसता? उसका अंजाम अल्लाह वहाँ क्या बता रहे हैं? दोहरी तकलीफ। यहाँ भी दोहरे तरीके से लोचता है इंसान को। देखो, अब सूद खाने वाला इंसान जब सूद खाता है तो उसका दिल रहम से खाली हो जाता है। अपनी औलाद को भी देखो है तो पैसे, कहा जाता है कि मारवाड़ी अपनी औलाद को देता है तो भी सूद लेता है, यानी फायदा नहीं से किसी को नहीं देता, तो बेरहमी आ जाती है ये। और दूसरा सामने वाला कितनी तकलीफ से दे रहा है, वापस कर रहा है, वो नहीं मालूम। असल हताश ऊपर का गैस चलते ही रहता है, ऊपर की मलाई चलती रहती है। नहीं तो ये तो उसका खून चूस को उसे अधमरा कर देते। दूसरा बेरहमी से उसे उसकी जिंदगी खत्म करता है सूद खाने वाला। तो यहाँ उसका अंजाम क्या बताया गया? एक सांपों की डसने की तकलीफ, दूसरा इंसानों के रोंदने की तकलीफ। आप गौर करके देखें, हमें सो को रखी हमारे ऊपर पहुंचे एकदम पेट देखना नहीं सो मुंह रख डालेंगे। अगर औंधे मुंडी सो को है पीठ को रखे तो खाली अल्लाह का दिन तक नहीं और ज्यादा तकलीफ नहीं है। अगर आप सोच कर देखें, सीधे को सीधा सो को ही और आपके पेट पर कोई पाँव रखते, संभाल सकेंगे आप? नहीं ना, ऐसी तकलीफ होगी वहां। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब में आप लड़कियों, आप तमाम जवान बच्चियां हैं, कुछ छोटी बच्चियां हैं, उन्हें छोड़ दें, उनकी जितनी समझ में आए उतनी समझ है। मैं आपके हिसाब से और एक दो मिसालें देखा, आगे बढ़ूंगी। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब पाक साफ प्योर गोश्त था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिसके अंदर से गंदी बदबू उठ रही थी वो था। वो लोग अच्छा गोश्त छोड़कर वो गंदा गोश्त खा रहे थे। आप शासन ने पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जो सही अपने शौहर और अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों और दूसरी मर्दों से ताल्लुकात रखे हुए थे दुनिया में। अफेयर, शादीशुदा जिंदगी में भी जो दूसरों के साथ अफेयर रखते हैं ना लोग, उनका अंजाम ये बताया गया। ठीक है। फिर उसके बाद इन्हीं मुशाहिदात के सिलसिले में ये तमाम एग्जीबिशन, ये ना जन्नत है या ना दोज़ख है प्यारी बच्चियों, ये जन्नत भी नहीं दोज़ख भी नहीं, पहले आसमान का कुछ एग्जिबिट करके दिखाया जा रहा है। जिस तरह हम एग्जीबिशन को जाते हैं तो कुछ बाहर कपड़े वगैरह, कपड़ों की दुकान में कपड़े, बेडशीट के दुकान में बेडशीट डाले जाते हैं, हम उन्हें देखकर हमें पसंद आया तो माँ यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर जाएंगे देखते ही ना। तो इस तरह के एक एक जिंदगी का नमूना अल्लाह ताला ने दिखाया कि देखो इस तरह करोगे तो ये अंजाम होगा। ठीक है। इन्हीं के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो निहायत स्टर्न मिजाज का था, एकदम तशरो वरट कैसा मुंह को हंसा तक नहीं। आपने जिब्राइल से पूछा अब तक जितने फरिश्ते भी मिले बहुत हशाश बशाश खुश हंसते मुस्कुराते मिले, इन हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है?
कोई मिल तो आपने पूछा था। तो जिब्राइल ने कहा उनके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख के दारोगा है, दिन रात चीख पुकार रोना जलन तड़प, देखते 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 उनके मुंह से हंसी गायब हो गई है। ठीक है, ये सुनकर आपने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की मेरे शासन में। तो उसने कौन, दोज़ख के दारोगा का नाम क्या है? मालिक। दोज़ख के दारोगा का नाम मालिक है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आता है। तो उसने अचानक आपकी नजर के सामने पर्दा हटा दिया दोज़ख का, और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई, यानी आपने दोज़ख देखी। तो इससे गुजरकर आप दूसरे आसमान पर पहुंचे, यहाँ दो नौजवान से आपकी मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम है। तीसरे आसमान पर आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न, जिनकी खूबसूरती आम इंसानों के मुकाबले में ऐसी थी जैसे तारों के मुकाबले में चौदहवीं का चांद, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठवें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, तो सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीम शान महल था जिसका नाम बैतुल मामूर रखा गया था। ये देखा जहाँ बैतुल मामूर, ये जो महल था सातवें आसमान पर, उसे टेक लगाकर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। ठीक है, ये जो आलीशान महल था ये आसमान का काबा है। जमीन पर जो काबा है हमारा, ये काबे के सीध पर, यानी सीध का सेम डायरेक्शन पर सातवें आसमान पर ये है जिसका नाम बैतुल मामूर है। कुरान मजीद में इसका जिक्र मिलता है सूरह तूर में शायद। ठीक है, तो ये बैतुल बैत कहते हैं घर को, मामूर कहते हैं घर को सजाया जाता ना, घर को सजाया था ना, उसे मामूर कहते हैं। इसका नाम बैतुल मामूर इसलिए है कि ये हमेशा भरा पड़ा रहता है फरिश्तों से। अब एक हिसाब से जमीन पर काबतुल्लाह भी बैतुल मामूर है, हमेशा इंसानों से भरा रहता है कि नहीं। आधी रात की जगह गए तो भी लोग, कल परसों उम्रे को इससे एक बहन आई थी, कहने लगी हज में कुछ भी नहीं, उतने ज्यादा रहते हैं, उतने ज्यादा थे लोग। तो बहरहाल आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। सूरत में इंट्रोडक्शन कराने पर मालूम हुआ कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर और ज्यादा सफर हुआ, यानी सातवें आसमान से ऊपर गए, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा कहते हैं एक दरख्त की टहनी आई हुई है जिसे बॉर्डर लाइन कहा जाता है। अब हम इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन, इस तरह दो मुल्कों की बॉर्डर लाइन होती है ना, कौन सी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह खालिक और मखलूक के दरमियान की बॉर्डर लाइन है ये, समझे। तो नीचे से जाने वाले जो भी अहकामात थी जो फरिश्ते ले जाते हैं वहां रुक कर वहां रख देते हैं, और ऊपर से जो कानून, जो अहकामात, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अल्लाह ताला को देने होते हैं वो वहां रख देते हैं। तो फरिश्तों ने अल्लाह को नहीं देखा, वहां गए नहीं, तो वो बॉर्डर लाइन से ले लेती, वो बॉर्डर लाइन को रख देती। तो ये सिदरतुल मुंतहा है। इसी मुकाम के करीब, सिदरतुल मुंतहा के करीब आपको जन्नत दिखाई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए, अपने सालेह बंदों के लिए वो तैयार कर रखा है, वो सजा रखा है जो किसी आंख ने न कभी देखा, न किसी कान ने सुना, और न किसी के जहन में भी उसका तस्वुर तक नहीं आ सकता, इमेजिन तक नहीं कर सकता। उतनी प्यारी अल्लाह ताला वो जन्नत सजा को है जिसकी खबर हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ठीक है, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल ठहर गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। ये बुलंद हमवार जगह पर बारगाहे जलाल सामने थी, यानी अल्लाह ताला का जो ये था वहां सामने था, और अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु की मुलाकात हुई। हम कलाम कहते हैं, बातचीत हुई। तो वहां भी क्या था, पर्दा हायल था, आप सल्लल्लाहु ने अल्लाह ताला को नहीं देखा। ठीक है, हा? तो इनमें वहां अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद तोहफे दिए, चंद बातें इरशाद की, पर्सनल बातें। ये रूल्स एंड रेगुलेशन वाली बातें नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लीगली जो देना है वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता चुके हैं। ये पर्सनली जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिए। अब एक मैंने आपको बताया था ना, एक प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से पर्सनल बातचीत भी तो करता है ना, वो पर्सनल बातचीत का जिक्र अल्लाह ताला मिनिस्टर तो नहीं कर, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकता ना, जरूरत नहीं है ना उसे। वो बताएंगे कौन, चीफ मिनिस्टर।
हमारे प्रेम से ये मिले, ये बात करे, ये करे। तो इसी तरह यहाँ अल्लाह ने अपने रसूल से बातचीत तो की जिसका जिक्र अल्लाह ताला नहीं करते, बल्कि ये जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो जो बातें इरशाद हुई, जो तोहफे दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उनमें से चंद यही: हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। दूसरा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तालीम दी गई। तीसरा, शिर्क के सिवा दूसरे तमाम गुनाहों की बख्शिश का ख्वाहिश जाहिर किया गया। पक्का कर तो नहीं, हो सका तो कर देते, हो सका तो नहीं, अल्लाह ताला के पास क्या नहीं हो सकता, मैं चाहा तो कर दूंगा, सिवाय शिर्क के। चौथी बात इरशाद हुई, जो शख्स नेकी का इरादा करता है, खाली इरादा करे तो उसके हक में एक नेकी लिख ली जाती है, और जब वो नेकी पर अमल करना शुरू कर देता है, खाली आज जाना ये वो की क्लास को आपने इरादा किया तो आपको एक नेकी लिख दी गई। फिर आप तैयार हुए, अपना काम निपटा कर जल्दी जल्दी वक्त से पहले जाने के लिए निकले, तो एक एक कदम पर जितने पाँव के नीचे बालू, जर्रे, रेजे मिलते ही ना, उतनी नेकियां अल्लाह ताला लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जब उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, या फिर उसके इखलास के लिहाज से 700 या उससे भी बढ़कर। और जो बुराई का इरादा करता है अल्लाह ताला के खिलाफ कुछ नहीं लिखते। बुराई का इरादा करें, अम्मी को बोल को इज्तिमा को आना को बंक मारेंगे, प्रोग्राम पढ़िया लेकिन बुराई लिखी नहीं गई, सचमुच बंक मार दिया तो ये बुराई लिखी गई, सचमुच। ठीक है, और अगर बंक मारने का इरादा तो किया, फिर नहीं दीन के बाद रसूल का देंगे, फिर आपने इरादा पलटा लिया ना, तो वो बुराई से बचने की एक नेकी अल्लाह ताला दे देते हैं। ठीक है, तो जब उस पर अमल करता है बुराई पर, तो एक ही बुराई लिखी जाती है। फिर उसके बाद इतना हुआ, फिर अल्लाह ताला के से बातचीत करने के बाद वापसी पर नीचे उतरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम कौन से आसमान पर थे? 6वें आसमान पर। अब वो पहले 7वां मिला, उसके बाद 6वां मिला, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, क्यों पूछा था? उन्होंने खुद अल्लाह से बातचीत की थी ना, वही तरीके की ना ये भी बातचीत है, तो क्या दिए, क्या मिला, इस तरह पूछा जाता है ना। मूसा अलैहिस्सलाम को भी कुछ दिया गया था ना, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज हुई। उन्होंने कहा, मैं बनी इसराइल का तल्लख एक्सपीरियंस रखता हूँ, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, जाइए और कमी की अर्ज कीजिए। अब फिर 6वें आसमान से ऊपर गए, फिर पूछा 10 नमाजें होंगी, फिर वापस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा 40 नमाजें भी तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ती। तो इस तरह बार बार जाते रहे, बार बार कम कराते रहे, यहाँ तक के 5 नमाजों तक बात हुई। 5 नमाजें आप पर फर्ज हुई और हर बार 10 नमाजें कम होती रही। आखिर 5 नमाजों की फर्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया यही 50 के बराबर। अब देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों पर उंडेलने के बहाने किस तरह करते हैं, अपनी रहमत उंडेलने की बहाने। अल्लाह ताला को पता था ना पहले ही कि मैं 50 नमाजें फर्ज करूंगा, मोहम्मद मेरे पास आएंगे, कम कराएंगे, फिर जाएंगे, कम कर, इतना पहले से अल्लाह को मालूम है। अल्लाह को मालूम नहीं तो कोई बात नहीं है ना। अगर तो अल्लाह ताला पहले 5 रख सकते थे ना, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, पहले 50 रखी और 50 को 50 की उतना अजर रखा। डिस्काउंट नमाज में होते रहे, अजर में डिस्काउंट नहीं किया अल्लाह ने, और कहा एक एक नमाज पढ़ोगे तो 10-10 नमाजों का अजर मिलेगा। ये जो हम 5 नमाजें पढ़ते हैं ना प्यारी बच्चियों, फजर की 1 पढ़ेंगे तो 10 नमाजों का अजर अल्लाह ताला हमारे खाते में डालेंगे, जोहर पढ़ेंगे तो 10, असर पढ़ेंगे तो 10, इस तरह 5 नमाजों का 50। वापसी के सफर में आप उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मक़दस आए, यहाँ से तमाम पैगंबर मौजूद थे, आपने उनको नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी। इतना सब कुछ कितने देर में हुआ, आधी रात से फजर की नमाज तक। फिर बुराक पर सवार गए और डायरेक्ट मक्के को वापस आ गए। सुबह सवेरे पहले आपने अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी को यह किस्सा सुनाया, फिर बाहर निकलने का इरादा किया तो उन्होंने आपकी चादर पकड़ ली और कहा अल्लाह के लिए यह किस्सा लोगों को ना सुनाइए, वरना आपका मजाक उड़ाने का एक नया शीशा उनके हाथ आ जाएगा। मगर आप ये कहते हुए निकल गए, मैं जरूर बयान करूंगा, मैं क्या कोई हूँ, मैं देख मैं बताऊंगा। हर में काबा में पहुंचे तो अबू जहल से आमना सामना हुआ। ये अबू जहल जो था आपका कजिन जैसा था, दुश्मन खुदा था, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मजाक है, आज क्या बोला तेरा अल्लाह, आज कोई नई खबर, इस तरह पूछा करता था। तो उसने कहा कोई ताजा खबर? आपने फरमाया हाँ। पूछा क्या? फरमाया कि मैं आज की रात बैतुल मक़दस गया था।
اس نے کہا بیت المقدس راتوں رات ہوا ہے اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا ہاں. اب دیکھیے انہیں مزہ لینے کو کیا بول رہے ہیں. اس نے کہا قوم کو جمع کر دوں, سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ آپ نے فرمایا بے شک. ابو جہل نے آواز دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا ایسا کرتے نہیں بولیا, اب بولو گے. وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر سے یہ الفاظ نکلے اور پوری قوم آپ کا مذاق اڑائے, اس لیے کہ اس زمانے میں مکے سے بیت المقدس کا سفر 2 مہینے ہوا کرتا تھا. اب ادھی رات کو جا کو بھی آگا کو بولے تو آج بولے تو یقین کر سکتے ہیں ہمیں, آج پلین ہے, آج ہیلی کاپٹر ہے, بہت سارے ہیں. اس زمانے میں یہ بات 1500 سال پہلے کہی جا رہی تھی تو دماغ کے کونے میں بھی نہیں, امپاسبل سے امپاسبل نہ نہیں. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن, محال. پہلے تو شک تھا, اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو چکے ہو. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیے دیکھو نا. پہلے کیا کہ ذرا ڈاؤٹ تھا, اب تو پورا یقین ہو گیا کہ تم پکے دیوانے ہو گئے. آنند فانند یہ خبر تمام مکے میں پھیل گئی. بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جن کا اسلام ابھی کمزور تھا, انہوں 2 مہینے کا سفر آدھی رات بجا پا سکتی سے چھوڑی سفر کو پھر انہوں کفر کی طرف چلے گئے. لوگ اس امید پر ابو بکر کے پاس پہنچے کہ یہ محمد کے رئیس ہیں نہیں, یہ اگر پھر جائے نا, یہ ایک نہیں ہو سکتا اور بول دے تو یہ پوری اسلام کی جان نکل جائے گی. تو انہوں نے یہ قصہ سن کر تمام سرداران ابو بکر صدیق کے پاس جاتی, جا کو دیکھو تمہارا دوست ایسا بول رہا ہے, بول دی. تو انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا اگر واقعی محمد نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا, اس میں تعجب کی کیا بات ہے. میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں اسے سچ مانتا ہوں. میں جب آسمان سے پیغام آ سکتا ہے تو ہمارے نبی آسمان کو کیوں نہیں جا سکتے؟ تو اس وقت ان کا نام صدیق پڑا, سچ کہنے والا. پھر ابو بکر صدیق کعبے کو آئے, حرم کعبہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حسین اڑانے والا مجموعہ بھی. آپ غور کر کے دیکھیں پیاری بچیوں, یہ انسان سچ مچ جو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے, جو اس پر بیتی ہے وہ بتا رہا ہے, اور پورے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے اپنے مکے کے لوگ کون تھے؟ ان کے اپنے تھے نا. تمام مذاق اڑانی پہلے گمان تھا تو سچی دیوانہ ہو گیا. اگر کوئی ہم سے اس طرح کہے نا, ہم ایک اچھی بات بولنے جا رہے ہیں اور لوگ ہمیں دیوانہ کہیں تو ہمارے دلوں پر کیا گزرتے ہیں, کیا بیتتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں. تو ایسا تھا. آپ ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ پہلے کنفرم کر لیا انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. تو ابو بکر صدیق نے کہا, ابو بکر صدیق کی عقل مندی دیکھیے, انہوں نے کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے, میں کیا کروں؟ اور اس میں بہت سارے سردار بیت المقدس کو گئے ہوئے تھے تجارت وغیرہ کے سلسلے میں. تو ابو بکر صدیق نے کہا آپ وہاں کا نقشہ بیان کیجیے, آپ وہاں کا بیت المقدس کا اسٹرکچر کیسا ہے بیان کیجیے. پیاری بچیوں, اب یہاں رک کر ایک بار اور غور کر کے دیکھیں. میسور کا محل آپ تمام نے دیکھا ہوگا, دیکھنے کو ہی گئے ہوں گے آپ نہیں. اگر میں آپ کو پوچھوں کہ فرنٹ ڈور پر کون سی دیوی کی تصویر انہوں نے کھودی ہے, آپ بتا سکیں گی؟ نہیں بتا سکتے. دن رات آپ کے گھروں میں آپ استعمال کرتے ہیں چیزیں. اگر میں سڈن آپ کو پوچھوں کہ آپ کے واش روم میں جو بکیٹ رکھی گئی ہے یا جو جگ رکھا گیا ہے اس کا کلر کون سا ہے یا اس کا برانڈ کون سا ہے, آپ بتا سکیں گے؟ نہیں, اور نہیں کرتے ہم لوگ. اب ہمارے نبی دیکھنے نہیں گئے تھے, اور کرنے نہیں گئے تھے, پھرنے نہیں گئے تھے. آپ گئے تھے اسٹیشن ملا, وہاں اترے, نماز پڑھائی, پھر واپس نکل گئے تھے. اب یہاں وہ صدیق پوچھ رہے ہیں کہ اس کا نقشہ بیان کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک باریکی سے باریکی پورا بیت المقدس کا نقشہ بتا دیا. کیسے ہوا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام, بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کا ایک پورا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ بیت المقدس ادھر دیکھ رہے تھے, ادھر بتا رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی اس پلاننگ سے جھٹلانے والوں کو یہ
شدید مار پڑی. وہاں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس گئے تھے, تمام کو جو پتا نہیں کٹ ویسے کا ویسا تھا بیت المقدس. ہمارے نبی زندگی میں بیت المقدس کو نہیں گئے تھے. آپ تمام جانتے ہیں کہ آپ وسلم سفر کو کبھی نہیں گئے, اور گئے ہوتے تو مکے والوں کو پتا چل جاتا کہ کیونکہ اس وقت اکیلے پلین میں بیٹھ کر جا کر سفر کرنے کا نہیں تھا, ادھر گروپ کے ساتھ جانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اور زیادہ کنفرم ہونے کے لیے لوگوں نے پوچھا اور کچھ ہنٹس بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاتے ہوئے فلاں مقام پر فلاں قافلے سے میں گزریا جس کے ساتھ یہ سامان تھا. قافلے والوں کے جو اونٹ تھے وہ اونٹ براق سے بھڑکے, ان کی سواری سے ایک دم بھڑکے. یہ اونٹ وہ کون سی کے وادی کا نام بول کو وہ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا. میں نے قافلے والوں کو اس کا بتایا. واپس میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا. جانے کے وقت ایک قافلہ ملا, وہ اس کا اونٹ بھاگا تھا, وہ میں ایڈریس بتایا. واپس آنے کے وقت ایک قافلہ ملا, سب لوگ سو رہے تھے. میں ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی نشانی چھوڑ دی کہ وہاں سے پانی پیا گیا. ٹھیک ہے, ایسے ہی کچھ اور اتے پتے بتائے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی. انہوں کیا کرے, بعد میں وہ قافلے والے آئے نا 2 مہینے کا سفر کر لے آپ کو, پھر 2 مہینے کا سفر کرنے کا جسنا لوگ آئے کے بعد انہوں پوچھے ان کو ایسا ہوا کہ ایک عجیب نقم کا جانور تھا, وہ جانور کتے کو ہمارے اونٹ بھاگ گئے, کون کی ایک صاحب وہ بتائے, وہ جا کو ہمیں دے دے گا. کریکٹ کنفرم ہو گئے. اس طرح زبانیں بند ہو گئی ان لوگوں کی, مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. تو یہ ہے معراج کا سفر نامہ. تو انشاءاللہ آئندہ میں بتاؤں گی کہ جب معراج آئے گی تو ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کے ذریعے سے جب ہم سمجھیں گے تو ہم بتائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.